Hello, Matuji, you're watching Morning Pulse on Non-Bill TV. The Chief Election Commissioner Ganesh Kumar has launched a globally accessible ECI Net platform aimed at serving India's 100 crore voters with a transparent and technology-driven system. Speaking at the launch, he said that over the past decade, the Election Commission addressed voter needs through multiple apps, which have now been integrated into a single platform, ECI Net. He added that the Commission received nearly 93,000 public suggestions during development, many of which have been incorporated. With its global launch, election bodies worldwide have expressed interest in the platform. The CEC highlighted that in line with India's tradition of collaboration, ECI Net is expected to support international electoral bodies in enhancing transparency and efficiency. भारत में 100 करोड़ मतदाता हैं और स्वाभाविक तौर से मतदाताओं की चुनाव संबंधी सारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक पारदर्शी और एक टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म की आवश्यकता है। पिछले एक दशक से चुनाव आयोग ने लगातार कोई न कोई ऐप तैयार करके मतदाताओं की सुविधा का ध्यान रखा, लेकिन धीरे धीरे चुनाव की जटिलताएं और पारदर्शिता को देखते हुए ये सारी ऐप्स एक में करने के बाद ECI नेट का प्रादुर्भाव किया गया। ECI नेट के आने के बाद जनता ने भी सुझाव दिए। लगभग 53,000 सुझाव जनता से हमें मिले, जिसका कि इसमें समावेश कर लिया गया है। बिहार चुनाव में इसका पायलट भी रन कर लिया गया था और अब ECI नेट पूरे विश्व पटल पर लॉन्च हो चुका है और सारी इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज इसमें रुचि भी दिखा रही हैं। और भारत की जो टेक्नोलॉजी है, भारत की जो विशालता है इस टेक्नोलॉजी में, मोर देन 1 बिलियन वोटर्स एंड ऑल सर्विसेज अवेलेबल ऑन ECI नेट, ये देखकर सभी लोग इंक्वायरीज भी कर रहे हैं और आशा है कि बाकी चुनाव आयोगों, विदेशों के चुनाव आयोगों के साथ भी हम लोग जो सहयोग की परंपरा रखते हैं उसमें भारत की टेक्नोलॉजी का सहयोग भी कर पाएंगे। जय भारत, जय हिंद। Ahead of the 2026 Republic Day celebrations, the Delhi Police will deploy AI-enabled smart glasses and advanced facial recognition system as part of an upgraded security architecture aimed at tightening surveillance and improving threat detection across the national capital. Additional Commissioner of Police Devesh Kumar Mahala said the force is making full use of technology-driven solutions from a security perspective. He noted that all CCTV cameras will be equipped with video analytics and facial recognition systems, enabling police to identify suspects with greater accuracy. As per Mahala, this will be the first time the Delhi police personnel will use such advanced wearable technology during the Republic Day parade. Selected police personnel will wear the smart glasses while on duty along with the parade route to monitor crowds and identify potential threats. Explaining the technology, the officer said multiple algorithms have been fed into standalone systems that can identify wanted individuals even if they attempt to disguise themselves. Mahala emphasized that data security has been prioritized. Police said the smart glasses are equipped with a built-in camera connected to a mobile application and linked to a database of around 65,000 criminals. The device scans faces in real time and alerts police personnel immediately if a person with a criminal record is detected. Mahala further said that the smart glasses also feature thermal scanning, which will help detect concealed weapons of suspicious objects carried by individuals attending the parade. In addition to technological surveillance, extensive physical security arrangements have been put in place. Around 10,000 police personnel will be deployed in the New Delhi district alone, with more than 3,000 CCTV cameras have been installed and over 30 control rooms have been set up. Authorities will enforce 3 layers of physical checks for pedestrians with similar screening protocols for vehicles. हम टेक्नोलॉजी का फुल यूज करेंगे जो सिक्योरिटी के इस लिहाज से हमारे लिए यूजफुल हो सकता है। डेफिनेटली सारे जो कैमरेज हैं हमारे CCTV कैमराज, उसके अंदर वीडियो एनालिटिक्स और FRS रहेगा। वीडियो एनालिटिक्स के डिफरेंट प्रकार होते हैं, उनका भी इस्तेमाल किया जाएगा। और इस बार स्पेशली हमने डेवलप्ड कैमरा भी जो वियरेबल ग्लासेस हैं उनका भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनके अंदर हमने डेटाबेस, स्टैंड अलोन सिस्टम के अंदर डेटाबेस विद डिफरेंट एल्गोरिथम फीड किया हुआ है। जो लोग वांटेड हैं वो अगर यहाँ पे पाए जाते हैं, दिखाए जाते हैं, अगर किसी भी तरीके के मेकअप में या विथ मास्क और विथ कैप और एनीथिंग, बियर्ड और एनीथिंग, दे विल बी आइडेंटिफाइड बाय आवर एल्गोरिथम, जो हमने कैमरेज अभी डेटाबेस के साथ में सेटअप किए हैं। दे हैव बीन टेस्टेड एंड वी हैव फाउंड देम यूजफुल। ये डेटाबेस कहाँ लोड होगा, कैसे अलर्ट आएगा, क्या कुछ होगा? ये FRS जो कैमरे फिक्स लगे हुए हैं उनके साथ में तो हमारा स्टैंड अलोन सिस्टम है जो इंटरनेट से नहीं जुड़ा हुआ है,
उसके अंदर होगा। उसके अलावा वियरेबल ग्लासेस में इंडिविजुअल मोबाइल के अंदर हम ये डेटाबेस डालेंगे जो भी इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं होगा। तो स्टैंडअलोन सिस्टम में हर एक मोबाइल के अंदर अपना इंडिविजुअल डेटाबेस जिप फाइल में इसके अंदर डाला हुआ है। इस डेटाबेस को एल्गोरिथम में डिफरेंट तरीके से ट्रेन कर लिया गया है कि अगर किसी भी तरीके से आदमी, चाहे वो 20 साल पहले का हो या अभी का हो, कैसा दिखाई देगा, उसके दाढ़ी मूछ हो या बड़े बाल हो, उसके चेहरे पे कट हो, तो उस तरीके से वो दिखाई देगा। इसके अंदर एक और फीचर है कि अगर किसने फेस मास्क भी पहना हुआ है या फोटो है तो उसको भी वो आइडेंटिफाई करने में सक्षम होगा। सर 26 जनवरी का दिन भी है, तो उस लिहाज से सुरक्षा बलों की अगर बात करें तो क्या कुछ डिप्लॉयमेंट रहेगा इस फीचर के अलावा? लगभग 10,000 पुलिस फोर्स हमने डिप्लॉय की है दिल्ली पुलिस की डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जिसमें 3 लेयर की फिजिकल चेकिंग पेडेस्ट्रियन की होगी और अराउंड सेम व्हीकल चेकिंग भी होगी। उसके अलावा 4 लेयर की सॉफ्ट चेकिंग का भी हमने प्रावधान रखा है। अभी तक 9 से 10 बार हम अभी तक रिहर्सल और ब्रीफिंग कर चुके हैं और इसके बाद में हम वी हैव अटेस्ट टू द परफेक्शन एंड वी आर श्योर दैट फ्लॉलेस अरेंजमेंट शैल बी डन दिस टाइम फॉर द रिपब्लिक डे अरेंजमेंट। Ahead of the Republic Day Parade 2026, senior Air Force officials have shared details of the Defence Forces W and the aerial display that will be showcased at Kartavya Path. Group Captain Dharmendra Singh said that this year's Indian Defence Forces W will carry the theme Sangram Se Rashtra Niram Tak, meaning from war to nation building. He said the W will be divided into 2 parts, the first highlighting India's major wars and the sacrifices of its soldiers, and the second showcasing the role of the armed forces in nation building and development activities. ये इंडियन डिफेंस फोर्सेस वेटरन्स का टैब्लू है एंड जिसमें आप देखेंगे झांकी। इस झांकी को आप देखें कि जब कर्तव्य पथ पे ये जाएगी, इसमें एक मैसेज कन्वे हो रहा है। ये थीम है इस बार का, संग्राम से राष्ट्र निर्माण तक। तो इसको ऐसे दर्शाया गया है कि आगे का जो हिस्सा है वो संग्राम को दर्शाता है एंड उसके बाद जब एक्टिव सर्विस से जो हमारे आफ्टर द रिटायरमेंट हमारे जो सोल्जर्स थे उन्होंने एक्टिवली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं राष्ट्र निर्माण में, वो पीछे वाले पार्ट को दर्शाया गया है राष्ट्र निर्माण में। और कई तरीके हैं राष्ट्र निर्माण के, उनको हमने दर्शाया है। लाइक आप देखेंगे मेक इन इंडिया ड्राइव में एक्टिवली पार्टिसिपेट किया उन्होंने, इंडियन इंडस्ट्री को सपोर्ट किया बेस्ड अपॉन देयर रिच एक्सपीरियंस। उस एक्सपीरियंस को उन्होंने जिस तरीके से यूज किया है सो दैट कि पुराने वेपन प्लेटफॉर्म्स को भी सस्टेन करने के लिए और नई तकनीक को भी डेवलप करने के लिए उस योगदान को हमने इसको दर्शाया है। एंड उसके बाद सेल्फलेस सर्विस उन्होंने दिया है। आप देखेंगे कि पीछे वाले पार्ट पे जिसमें रोटेटिंग प्लेटफॉर्म पे हमारे 7 मैनिक्विन्स हैं, उसमें स्पोर्ट्स के फील्ड में दर्शाया गया है, देन फॉलोड बाय मेडिकल सर्विसेज में जो उन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही हैं एंड उसके बाद टीचिंग, योगा एंड एग्रीकल्चर, कृषि में वो अनुभव जो उन्होंने लिया है उसको यूज कर रहे हैं। एंड उसके अलावा एक वॉलंटरी बेसिस पे उन्होंने, आपने देखा होगा कि ऊपरी तह पे एक HADR मिशन होता है, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशंस, जिसमें स्वतः वो आके उन्होंने योगदान करते हुए हमारे देशवासियों की बचाया है वेरियस फ्लड ऑपरेशंस में, उसको दर्शाया गया है। फ्रंट पोर्शन को आप देखें कि हमारी रिवियर्ड अमर जवान ज्योति है। उसके बाद जो रोटेटिंग प्लेटफॉर्म हमारा है उसको आप देखेंगे 1965, 1971 और 1999 इन तीनों के युद्ध को दर्शाते हुए रोटेटिंग प्लेटफॉर्म पे 3 डायमेंशनल व्यू में दिखाया गया है। और एक नई टेक्नोलॉजी हमने यूज की 3 डायमेंशनल हाई रिलीफ व्यू, उसको इसमें शोकेस करने की कोशिश किया, जिसमें मेजर वेपन प्लेटफॉर्म जो यूज हुए थे 1965 में उसको 1971, 1999 को। एंड उसके बाद एक आप देखे होंगे अष्टकोण ऑक्टागोनल स्ट्रक्चर है कि जो स्टैटिक रहेगा, उसमें उस समय के ऐसे कैप्चर्स थे, ऐसे जो ग्लिम्स थे जो कि प्रीसियस बहुमूल्य थे, उनको हमने दर्शाया है। 1965 में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जब भारत की विजय के बाद टैंक के ऊपर चढ़े थे उसको दर्शाया है। 1971 में सरेंडर डॉक्यूमेंट जो था पाकिस्तान का उसको दर्शाया गया है। एंड 1999 में वो जो तोलुरिंग के हाइट पे कारगिल में जो हमने जीत हासिल की थी, तिरंगा फहराया था, उसको दर्शाया गया है। तो इस एंड उसके अलावा 6 लाइव वेटरन्स भी आके हमारे उपस्थित खड़े होंगे जो आपके सामने उपस्थित होंगे वहां पे। तो उससे इस जनरेशन के लिए एंड एग्जिस्टिंग देशवासियों के लिए एक नॉट ओनली उनके लिए भी गौरव होगा एंड देशवासियों के लिए एक इंस्पिरेशन की भावना जागृत होगी। हाँ, तो उसके लिए जागृत होगी, इसीलिए हमने इसमें लिखा है ग्रेटफुल फॉर योर सर्विस, नेशन सैल्यूट्स यू। उनमें वेटरन से कौन-कौन से लोग होंगे जैसे आप? वो अभी बताया, वो ऑलरेडी है, दैट इज द सरप्राइज एलिमेंट जो हमें बताएंगे। 6 वेटरन 2 आर्मी के होंगे, 2 एयरफोर्स और 2 नेवी के होंगे। राठौर का आपने मेंशन किया था, उनको हमने इसके मैनिक्विन के रूप में दिखाया है, राज्यवर्धन सिंह राठौर को। थैंक यू सर। थैंक यू।
Meanwhile, Wing Commander Rajesh Deshwal, who is heading the parade arrangement, said that the flypast will feature a special segment inspired by Operation Sindoor, which is being dedicated to 3 key formations, Garuda, Prahar and Sindoor, in recognition of their achievements. He added that a total of 29 aircrafts will take part in the flypast, including 16 fighter jets, 4 transport aircraft and 9 helicopters, offering a spectacular aerial display during the parade. Officials said that overall presentation is aimed at highlighting not just the combat strength of the armed forces, but also their continued contribution to national progress and security. झलक दिखाई देगी जो हम 3 फॉर्मेशन को ऑपरेशन सिंदूर की सक्सेस के लिए हम डेडिकेट कर रहे हैं। आपको उन फॉर्मेशंस के अगर मैं नाम बताऊं तो वो रहेंगे प्रहार फॉर्मेशन, गरुड़ फॉर्मेशन और एक सिंगल पावरफुल कंपोजिट सिंदूर फॉर्मेशन। प्रहार फॉर्मेशन में हमारे पास रहेंगे 3 ALH हेलीकॉप्टर्स, जिसमें से आगे वाला हेलीकॉप्टर ऑपरेशन सिंदूर का झंडा आपको देखने को मिलेगा। उसके पीछे रहेगी हमारी गरुड़ फॉर्मेशन, जिसमें एक LCH जिसमें एक अपाचे और एक LCH आपको देखने को मिलेगा। अगर सिंदूर फॉर्मेशन की मैं बात करूं तो उसमें आपको 4 तरह के लड़ाकू विमान एक ही फॉर्मेशन में दिखाई देंगे, जो कि 7 लड़ाकू विमान स्पीयरहेड फॉर्मेशन में अबीम दी डायस आपके फ्लाई पास करते हुए दिखाई देंगे। उनकी अगर डिटेल्स की बात करी जाए तो उनमें 2 राफेल विमान रहेंगे, उनमें 2 MiG-29 एयरक्राफ्ट रहेंगे, 2 Su-30 MKI और 1 जैगुआर एयरक्राफ्ट रहेगा। फ्लाई पास्ट में टोटल कितने एयरक्राफ्ट हैं, उसमें कौन कौन से, अगर उसके इस बार फ्लाई पास में हमारे पास रहेंगे 29 जहाज, जिसका ब्रेकडाउन में रहेंगे 16 हमारे लड़ाकू जहाज रहेंगे, 4 हमारे ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट रहेंगे। Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhami, while speaking to ANI, said that under Prime Minister Narendra Modi's leadership, decisive action has been taken on issues like Article 370, Naxalism and terrorism. He said Uttarakhand became the first state after independence to implement the Uniform Civil Code under the guidance of the Prime Minister and Union Home Minister. The Chief Minister claimed the UCC is already showing positive results, especially in women empowerment and safety, with lakhs of people registering under the new law. He alleged that earlier there were attempts to spread misinformation and create doubts about the UCC, but said public participation has now made it clear that the initiative will benefit people across the country in the future. यूनिफॉर्म सिविल कोड हो और राम मंदिर हो, तमाम चीज़ों को लेकर सर उनका अपने संबोधन में कहा। सर किस तरीके से देखा जाए, जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में गृह मंत्री जी ने जिस प्रकार से देश के अंदर चाहे धारा 370 हो, नक्सलवाद हो, आतंकवाद हो, इन सभी पर काम हुआ है और देवभूमि उत्तराखंड को भी ये गौरव प्राप्त हुआ है कि देश की आज़ादी के बाद सबसे पहले समान नागरिक संहिता लागू करने वाला प्रदेश बनने का हमको गौरव प्राप्त हुआ है। और देवभूमि उत्तराखंड के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, आदरणीय गृह मंत्री जी के मार्गदर्शन में हमने समान नागरिक संहिता का कानून लागू किया है। उसके बहुत अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। शुरुआत में जब हम ये कानून बना रहे थे, लागू करने जा रहे थे, तो बहुत लोगों ने, बहुत प्रकार के जो ऐसे लोग हैं जो व्यवस्था विरोधी लोग हैं, टूल किट्स के रूप में काम करते हैं, अर्बन नक्सल गैंग जो कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर काम करते हैं, वो किसी भी कीमत पर लोगों को इसके प्रति सहज नहीं रखना चाहते थे। अफवाह फैलाने का काम, संदेह पैदा करने का काम उन्होंने किया। लेकिन अब 1 साल जिस प्रकार से हुआ है, महिला सशक्तिकरण का विषय हो, उनकी सुरक्षा का विषय हो या सभी की सुरक्षा का विषय हो, जिस प्रकार से लाखों लोगों ने आज समान नागरिक संहिता में अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है, वह निश्चित रूप से इन सभी अफवाहें बिल्कुल स्पष्ट हो गई हैं कि देवभूमि से निकली हुई ये गंगा आने वाले समय में सभी को लाभ देगी। Speaking on the Mukhyamantri Sahad Yojana, Aam Aadmi Party National Convener Arvind Kejriwal said that the party has fulfilled its election promise of providing free health care to every resident of Punjab. Kejriwal said that both he and Chief Minister Bhagwan Mann had assured voters during the campaign that quality treatment would be made available without cost, and added that significant progress has been made over the past 4 years to strengthen primary health care in the state. He said that nearly 1,000 Mohalla clinics have already been set up across villages in Punjab, improving access to basic medical services at the grassroots level. He also announced that the government plans to establish around 2,500 PIN clinics to further expand healthcare facilities in rural areas. Kejriwal said these steps are aimed at ensuring that no citizen is deprived of medical treatment due to financial constraints, and that the government remains committed to strengthening public healthcare infrastructure in the state. जब मैं और मान साहब चुनाव के लिए, प्रचार के लिए जाया करते थे तो हम गारंटी देते थे
उस टाइम कहते थे केजरीवाल की गारंटी। उसमें एक गारंटी होती थी सेहत की, कि पंजाब के हर व्यक्ति के लिए, हर नागरिक के लिए, पंजाब के रहने वाले हर व्यक्ति के लिए मुफ्त और अच्छी सेहत का इंतजाम करेंगे। लोगों को यकीन नहीं होता था। उन दिनों में कांग्रेस की सरकार थी, उन दिनों में कैप्टन साहब मुख्यमंत्री थे, फिर चन्नी साहब मुख्यमंत्री थे। वो कहते थे खजाना खाली है, वो कहते थे घाटे में चल रही है सरकार, वो कहते थे सरकार के पास पैसा नहीं है, वो कहते थे ये केजरीवाल घूम घूम के झूठी बातें कर रहा है कि फ्री बिजली देंगे, फ्री सेहत देंगे, फ्री शिक्षा देंगे। हो ही नहीं सकता, पैसा ही नहीं है। करके दिखा दिया, फ्री बिजली दे दी, अच्छे स्कूल बन रहे हैं, आज फ्री सेहत का भी इंतजाम शुरू से ही कर दिया था शुरू। आज तो बहुत बड़ा कदम है। पिछले 4 साल के अंदर हमने लगभग 1000 मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं, गांव-गांव के अंदर, मोहल्ले के अंदर। ये ऐरे गहरे मोहल्ला क्लिनिक नहीं है। पिछले 75 साल में अकाली दल, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस तीनों की सरकारों ने 75 साल में टोटल 400 प्राइमरी हेल्थ सेंटर खोले थे, टोटल 400। हमने 4 साल के अंदर 1000 मोहल्ला क्लिनिक बना दिए और अभी 500 और बन रहे हैं और 2500 पिंड क्लिनिक बनने वाले हैं अगले 4-5 महीनों के अंदर। हर गांव-गांव के अंदर, एक गांव के अंदर पिंड क्लिनिक बनने वाला है, मोहल्ला क्लिनिक और बनने वाले हैं, 1000 बना दिए ऑलरेडी। जो काम इन्होंने 75 साल में किया उससे शायद 10 गुना काम हम लोग। Villagers in Naxalite Jagragunda in Chhattisgarh have gained direct access to government schemes as banking services have been re-established. Chhattisgarh Chief Minister Vishnu Deosai said that the bank has been re-established and about 600 people have already opened accounts. Speaking to ANI, CM Vishnu Deosai said Jagragunda was famous for its tamarind market and the bank there was blown up by Naxalites. Now a bank has been re-established here. Earlier, people had to travel 60 to 70 kilometers to Bijapur, Sukma or Dandewara for banking facilities. Now, with the opening of bank in Jagragunda, about 600 people have already opened accounts and the people are now getting access to banking facilities. Meanwhile, Bastar Range IG Sundaraj B also continuous and extensive anti-Naxal operations to eliminate Naxalism coupled with developmental works in the Bastar division are the priority. बस्तर संभाग के अंतर्गत नक्सल समस्या के समाधान के लिए लगातार नक्सलवादी अभियान संचालन करने के साथ साथ विकास कार्य को भी प्राथमिकता दी जा रही है। इसी क्रम में जगरगुंडा एवं अन्य अंदरूनी इलाका में बैंकिंग सुविधा अभी क्षेत्र की जनता के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है। जगरगुंडा में पूर्व में इमली के लिए काफ़ी बड़ी बाजार लगा करते थे और आने वाले समय में पुनः बैंकिंग सुविधा प्राप्त होने से क्षेत्र में माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूसर्स इमली बाजार का और अन्य जितना भी व्यापार वाणिज्य और शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधा के लिए काफ़ी एक सकारात्मक परिस्थिति हमको निर्मित करके देने के लिए प्रयास की जा रही है और निश्चित रूप से बैंकिंग सुविधा बढ़ाने से क्षेत्र में और युवा युवती के लिए काफ़ी रोजगार के लिए और उनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए काफ़ी अच्छा सुविधा प्राप्त हो सकता है। Also speaking, Bank Assistant Manager Shankar Mundari said the government had provided strong support for the initiative. A branch has been opened in Jagragunda, Sukma district and over 600 accounts have already been opened there. Jan Dhan accounts are being opened free of cost. We are also spreading awareness along with parents' accounts of students are also being opened, he said. मेरा नाम शंकर मुंडारी है और यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर के हिसाब में काम करता हूँ और ये जो बैंक खुला है सुकमा जिला के जगरकुंडा में गांव में खुला है सर और अभी यहाँ अकाउंट खुल रहे हैं। अभी 600 से ज़्यादा अकाउंट खुल गया है सर। लोग यहाँ किस तरह आते हैं, विजिट किस तरह करते हैं, आप लोग लोगों तक पहुँचने के लिए क्या क्या करते हैं? नहीं, अभी जैसे यहाँ मतलब आसपास में तो बैंक नहीं है 50 किलोमीटर के दायरे में, तो यहाँ 14-15 गांव है जो लोग आते हैं और अकाउंट मतलब खुलवा रहे हैं। और अभी जैसे यहाँ कोई गांव बहुत अंदर है तो हम लोग वहाँ जाके कैंप उम्प करते हैं सर। सरकार का कितना सपोर्ट मिलता है और बैंक अभी खुला है, विष्णु देसाई सरकार में खुला है, तो ये कितना फायदेमंद लोगों के लिए सर? नहीं, फायदा तो हो रहा है सर। अभी आपको बोलेगी जैसे कि यहाँ 40-50 किलोमीटर के दायरे में बैंक नहीं है
तो अभी जैसे गवर्नमेंट का कोई भी फंड जैसे आ रहा है तो अभी वो लोग उनका डायरेक्ट खाता में वो आ रहा है सर। सरकार का सपोर्ट? जी सर, बिना सरकार का सपोर्ट में तो यहाँ बैंक भी नहीं खुलता सर। आप लोग जो सर्वे कर रहे हैं सरकार की हेल्प से, किस तरह वो गांव-गांव तक पहुंच रहा है, किस तरह लोगों को उससे आप जोड़ पा रहे हैं? नहीं, अभी जैसे सरकार का जैसे जनधन अकाउंट सब जैसा है तो उसमें क्या है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट में अकाउंट खुल रहा है, तो उसमें उन लोगों को उसमें लाभ हो रहा है। और आप लोग जागरूक भी कर रहे हैं? हाँ सर, जागरूक भी हम लोग कर रहे हैं। अभी जैसे उन लोगों का मतलब माँ बाप का अकाउंट तो खुल रहा है, उसके साथ साथ स्कूल में जो बच्चे लोग हैं उन लोगों भी अपना अकाउंट खुलवा रहे हैं, क्योंकि अभी जैसे सरकार जैसे पैसा कुछ भेज रही है तो उन लोगों का डायरेक्ट खाता में आ जाएगा सर। Further, local resident Roshni Kashyap said that earlier people had to walk for 60 to 70 kilometers and there were a lot of problems here earlier. People did not have facilities. The bank opening here has helped people. People have received benefit because of the government. मेरा नाम है रोशनी कश्यप और मैं जगरगुंडा की रहने वाली हूँ और यहाँ पे पहले बहुत तकलीफें थी, लोगों को ना सुविधाएं नहीं थी। जब से यहाँ बैंक खुला है तो लोगों को सुविधाएं मिली है। जैसे 60-70 किलोमीटर पहले जाना पड़ता था, अब उनको वहाँ जाना नहीं पड़ता है। दोनापाल या सुकमा या बीजापुर, दंतेवाड़ा भी जाना पड़ता था पहले। तो अभी जगरगुंडा में बैंक खुल गया है तो सुविधाएं मिली है। और अकाउंट खोलने के लिए आधार कार्ड का फोटो कापी, 3 फोटो, मोबाइल नंबर और पैन कार्ड का फोटो कापी। अगर पैन कार्ड नहीं है तो आधार कार्ड से चलता है अकाउंट। आते हैं खुश हैं अब यहाँ? जी खुश हैं सर। लोग आते रहते हैं? जी आते हैं, लगातार आते हैं। ये पहले कैसा सिचुएशन था यहाँ, पहले क्या स्थिति थी? जी यहाँ की स्थिति बहुत खराब थी सर पहले। अब कैसे? अब स्थिति सुधार चुकी है। सरकार के बदलने से सुविधाएं मिली है लोगों को। सरकार जो सुविधा पहुँचा रही है वो आप लोग तक, सब लोग तक पहुँच रही है? जी लगभग मतलब कुछ ही सुविधाएं पहुँच रही है। सरकार का फायदा मिल रहा है? जी सर। नाम Jagagunda, which lost its shine as Asia's famous market for tamarind due to Naxal violence, is gaining momentum to become economically empowered, with a nationalized bank starting operation after a year of Naxal violence. With the effort of the Chhattisgarh government, a branch of the Indian Overseas Bank has been established in Sukma's Jagagunda, which had remained under Naxal control for several decades. Witnessing a major transformational shift, the picture of Jagagunda is changing. Addressing the National MGNREGA Workers' Convention in Delhi, leader of the opposition in the Lok Sabha, Rahul Gandhi launched a sharp attack on the central government, accusing it of trying to weaken the foundations of modern India. He said the forces seeking to undermine the constitution and democratic institutions can only be stopped if people stand united. Rahul Gandhi stressed that unity among those who believe in democracy is the biggest strength against any attempt to damage the country's democratic structure. He added that when citizens and opposition voices come together, the government is compelled to step back. Speaking to MGNREGA workers, he also highlighted the importance of social welfare schemes and employment security and reiterated his party's commitment to protecting the rights of workers and the poor. The remarks come as the opposition continues to sharpen its attack on the government over issues related to democracy and constitutional values. आइडिया यही है कि हमारा जो संविधान है उसे खत्म करो। वन मैन वन वोट का जो कॉन्सेप्ट है उसे खत्म करो, लोकतंत्र को खत्म करो और जो आजादी से पहले हिंदुस्तान था, जहां पे एक व्यक्ति, राजा महाराजा, एक व्यक्ति पूरा डिसाइड करता था, सारे के सारे एसेट्स उनके हाथ में हुआ करते थे और जो भी वो करना चाहते थे वो करते थे, वैसा हिंदुस्तान वो फिर से लाना चाहता है। और इनकी इंटेंशन रुकने की नहीं है, क्योंकि ये जो मॉडर्न इंडिया का स्ट्रक्चर है इसको ये बदलना चाहते हैं और तोड़ना चाहते हैं। एक ही तरीका है इनको रोकने का, और मजदूरों को किसानों ने रास्ता दिखाया है।
अगर हम सब एक साथ मिलकर खड़े हो जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूं ये डरपोक लोग हैं, मैं अब इनको बहुत अच्छी तरह जानता हूं, ये डरपोक लोग हैं। अगर हम सब एक साथ खड़े हो जाएंगे, आप मनरेगा नाम देना चाहोगे या कोई और नाम देना चाहोगे? आप डिसाइड करोगे उस योजना का नाम क्या होगा, कैसे बनेगी, कहां चलेगी, कब तक चलेगी, कितने घंटे चलेगी। मगर ये मैंने कहा, मगर एक दूसरी बात भी कह देता हूं, अगर एक कमी है तो यूनिटी की कमी है। एक साथ गरीब लोग खड़े नहीं होते, अब होना पड़ेगा। और ये एक बहुत बड़ा मौका है, मनरेगा का जो आंदोलन है, ये बहुत बड़ा मौका है कि हिंदुस्तान के सारे गरीब लोग जो आइडिया ऑफ इंडिया के कॉन्सेप्ट में बिलीव करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव करते हैं, लोकतंत्र में बिलीव करते हैं, कि हम अगर एक साथ खड़े हो जाएंगे, मोदी जी पीछे हट जाएंगे और फिर से मनरेगा चालू हो जाएगा। आप दूर दूर से आए, दिल से आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। और जो संदीप ने कहा, जहां भी कांग्रेस पार्टी देश के मजदूरों के साथ खड़ी हो सकती है, वहां आपको कांग्रेस पार्टी खड़ी ही मिलेगी। धन्यवाद। In a significant judgment, the Delhi High Court has quashed an FIR alleging rape and caste-based atrocity, emphasizing that a consensual relationship that later turned sour cannot be retrospectively branded as rape. A single judge bench of Justice Swarna Kanta Shamo observed that criminal law cannot be used to settle personal grievances arising from a failed relationship. The court noted that the parties had been in a long-standing romantic relationship for nearly 4 years, maintaining regular contact through frequent meetings and extensive WhatsApp communications. The verified chats, the bench said, reflected mutual affection and normal interaction even after the date of the alleged incident, with no indication of coercion, force, or caste-based abuse. Highlighting the delay of 5 months in filing the FIR, the court said while delay is not fatal in sexual offence cases, it assumes significant when combined with evidence showing continued voluntary communication between the complainant and the accused after the alleged incident. Medical records also did not indicate any injuries or corroborative evidence of forcible sexual assault. The court rejected claims of sexual exploitation based on a false promise of marriage, stating that there was no material suggesting that any promise was made with dishonest intent at the start of the relationship. WhatsApp conversations instead reflected a gradually evolving consensual relationship. On the allegation of caste-based atrocity under Section 3, Clause V of the SC/ST Prevention of Atrocities Act, the court clarified that the provision applies only if an offence is committed on the basis of the victim's case. In this case, there was no contemporary material of verified communication indicating caste-motivated abuse, making the charge unsustainable. Court that continuing the prosecution would amount to an abuse of the process of law, the Delhi High Court quashed FIR along with all consequential proceedings. That's all we have for now. Keep watching Armbil TV.